and today the prices have reached a point of 20-25,000 rupees per square feet. Yes. So where is the upside? Okay. I don't see an upside in Gurgaon for the next 6 years. मतलब 25,000 में एक तो खरीदना ही बड़ा मुश्किल है, और फिर उसको बेचना और भी मुश्किल है. हाँ, और इन्वेस्टर को अगर उसको रखना है और इन्वेस्टर सोचे कि ये 25,000 का 50,000 हो जाएगा, नहीं होगा. Okay. 7-8 साल तो लगेंगे. देखो हो जाएगा, मैं ये नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए नहीं होगा, बट आई फील दैट, and if you on a vis-a-vis, if we compare to where we are in Lucknow, we are selling sub 10,000. We are at Really? 7-8,000 rupees today. Oh. So that 7-8,000 ka market very easily can become a 12-14-15,000 ka market. Achha. Right? It has that potential today because again the mindset has shifted for customers, investors there from पहले क्या था, वहां सिर्फ प्लॉटिंग था. Okay. लोगों को प्लॉट जमीन लेनी थी. Right? But now since people like us who are doing high-rise projects there, we are coming up with great products. मतलब सेम प्रोजेक्ट अगर मैं सेम एमिनिटीज के साथ गुड़गांव में बेचूंगा तो शायद 20,000 रुपए फुट में बेचूंगा. और यहाँ वहां हम 7-8 हजार में बेच रहे हैं. सेम एमिनिटीज से ज्यादा ही है. Yes. Okay. We are one of our projects, we have 56 amenities. We are selling at 7,500. Okay. तो बात क्या है कि but there the potential for appreciation is still there, you know. Okay. Whether you talk about apartments, whether you talk about plots, the most expensive plot in Lucknow today probably is at what 1 lakh rupees per square yard. अच्छा. यहाँ 1 लाख में तो आप सोनीपत नहीं मिलेगा आपको, पानीपत नहीं मिलता. करेक्ट है ना बात? तो वो अब वहां 1 से 2 लाख 3 लाख की जर्नी है अवेलेबल. यहाँ नहीं रही वो. अब आप मुझे बताओ गुड़गांव में 4 लाख 5 लाख रुपए गज से कम कौन सा कहाँ मिलना है? है ही नहीं ना जी. And even if we talk about raw land, see what I earlier mentioned कि 40-50 करोड़ रुपीस की अब यहाँ पे जमीनें हो गई हैं. Unaffordable. Lucknow you can still buy land at 4 crore 5 crore in good locations per acre. इतना फर्क है. तो appreciation quotient तो है ही ना, the delta is still there. तो इसीलिए डेवलपर्स लाइक M3M, जैसे अभी M3M ने पानीपत लॉन्च किया है, IC पारस ने अभी मेरठ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इवन सन सिटी इज लॉन्चिंग इन Tier 2 Tier 3 cities. सो डेवलपर के लिए भी इट इज मेकिंग सेंस, एंड ऑल्सो इन्वेस्टर के लिए वुड यू सजेस्ट टू गो टू अ Tier 2 city? See, definitely. I mean, I just want to add one of the names that you didn't mention there, Abhinandan Lodha. He's only doing Tier 2 and 3. अच्छा. आप सोचो ना, मतलब कोई नहीं इमेजिन कर सकता सर. उसने अयोध्या में they've sold at 1,30,000 they're selling today. Vrindavan they're launching at 1 lakh rupees, 1,20,000. So they are an epitome of, you know, of a real estate developer who's going national on Tier 2, Tier 3. Acha. So, and there lies the money. See, one of the things we also have to consider is कि देखो Tier 1 cities are very, you know, the geometry is very exposed. You know, आज हम यहाँ पे there is a, यहाँ disposable income कम है. Okay. People are highly paid. Yeah. Lifestyle change हो चुका है. They want to spend, live their life, go out, do all of that. Ssalary बढ़ गई है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं. ये EMIs हैं, credit cards हैं. You know, we are in that very globalized metropolitan cities के अंदर way of living हो गया है. But if you talk about Tier 2, Tier 3, the amount of disposable income that people have, वो 20-50 साल से पैसे सेव करके बैठे हैं. आप समझ रहे हो? Like in our generation, we probably 15 years ago, we were the first ones like who were traveling abroad to study. Agree. You know, that is happening now in Tier 2. अच्छा. Their kids are now for the first time going abroad to study. खर्चा अब शुरू हुआ है. अब imported गाड़ियां पे खर्चा शुरू हुआ है. अब lifestyle पे खर्चा शुरू हुआ है. So the amount of money, disposable income, you cannot even imagine, because आप किसी के साथ बैठोगे ना तो आपको वहां लगेगा नहीं कि भाई इस आदमी के पास 500 करोड़ है या 300 करोड़ है या 1000 करोड़ है. You know, so the amount of money that people have, all levels I would say, and disposable income available. So I feel that the next real estate cycle, which some people like Lodha are already tapping into, and M3M का example दिया आपने पानीपत के साथ. So Godrej is also, if you see, they have lot of projects which are in Tier 2. अच्छा. Plotting projects, and you know, so they are making a lot of money there. आपने सही पॉइंट बोला है. Tier 2, Tier 3 के अंदर बहुत पैसा है. हाँ. मैं पीछे लुधियाने गया था. हाँ. हमें ऐसे लगता है कि यार क्या ही होगा लुधियाने में, एक छोटा सा शहर होगा, बट वहाँ जाके जब आप लोगों के साथ बैठते हो तब आपको पता चलता है कि कितना पैसा है वहाँ पे. मतलब they have so much money but they don't have
avenues to spend. कहाँ They don't खर्चा have करें avenues to spend. या इवन इन्वेस्टमेंट भी अगर करनी है तो वो ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं कि अब उनको लगता है यार और कितनी इन्वेस्टमेंट करें. बिल्कुल सही कह रहे हो जी. और अगर आप एक चीज देखोगे ना, सी दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है बिकॉज ऑफ बीइंग द कैपिटल एंड पोल्यूशन नॉर्म्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स. वेयर इज द इंडस्ट्री? सी पैसा कहाँ आएगा? जहाँ जॉब्स होंगी, जहाँ इंडस्ट्री होगी, है ना? या तो बिजनेसमैन के पास आएगा या जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास आएगा. सो वेर एवर यू सी दीज इकोनॉमिक सेंटर्स, माइक्रो मार्केट्स, दैट इज वेयर द मनी इज एंड दैट इज वेयर द पोटेंशियल इज. आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. लखनऊ से 2.5 घंटे दूर एक जगह है, उसका नाम है हरदोई. इट इज द लार्जेस्ट हैंडलूम सेंटर ऑफ इंडिया. जितने कारपेट हैं इंडिया के जो इंडिया में बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, सब हरदोई में बनते हैं. अच्छा. वहाँ एक बंदे की कैपेबिलिटी है सर, वो 50-50 करोड़ की चीजें खरीद सकता है. वो लोग ही तो सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड़गांव में, नोएडा में. बट टुडे दे विल नॉट इन्वेस्ट हियर ना, बिकॉज सैचुरेशन आ गया. सो वेयर विल दैट मनी गो? इट विल गो इनटू दीज tier 2 tier 3 सिटीज. सेम फॉर गुजरात. आप गुजरात में देखो, सूरत में कितना पैसा है. एग्री है ना जी. गांधीनगर तो चलो अहमदाबाद के साथ हो गया. आप मध्य प्रदेश जाओ, इंदौर में कितना पैसा है? बहुत पैसा है. आगरा हो गया, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ ट्राई सिटी हो गया. मोहाली देखिए, वेयर इज मोहाली टुडे? नोबडी यूज्ड टू थिंक अबाउट मोहाली. कभी हुआ क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था दूर दराज, बट आज मोहाली की मार्केट इज ग्रेट. मोहाली में अपना एयरपोर्ट आने के बाद वहां पे भी जो डेवलपमेंट हुई, इट्स बीन अमेजिंग. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई फील that is where I feel the next 7 years in real estate are for tier 2. Tier 1 में कुछ नहीं होना 7 साल. बट वुड यू थिंक कि ऐसा होगा कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो भी आज जाके लखनऊ में पैसा लगाएंगे? ऐसा होगा? सी देखो, there are 2 types of customers real estate. One is investor, one is end user. बिल्कुल. तो जो end user है उसने तो यहीं रहना है. एंड स्पेसिफिकली अगर हम एनसीआर की बात करें, दिल्ली मास्टर प्लान इज कमिंग. अच्छा. सो आई फील दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, नॉट इमिनेंटली बट नेक्स्ट 2 to 3 years ऑन गुड़गांव एंड नोएडा मार्केट्स. अच्छा. बिकॉज दे आर ओपनिंग अप 55,000 acres. मोर देन 100 sectors are coming, 500 acres each. So, and they are very aggressive right now. You know, the political situation has improved now. Delhi में BJP government है, center में BJP government है. So now they're very aligned and they're very proactive about it right now. And I think वो infrastructure push में भी मोदी गवर्नमेंट बहुत वो आएगा ही आएगा. So देखो, जो अगर हम investment की बात करें, so I'm not being biased, but I feel that anywhere outside थोड़ा tier 2 में जाओगे तो the capital appreciation is definitely there. बट अगर जिसमें दिल्ली में रहना है तो फिर वो तो एनसीआर में ही रहेगा ना. तो उसके लिए तो यहाँ पे मार्केट है ही. एंड रीसेल मार्केट इतने अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, सब लेंगे लोग, वहाँ पे रहेंगे. हाँ, बट वो होता क्या है कि आप एक दिल्ली में घर बना लोगे, आप एक नोएडा में घर बना लोगे, उसके बाद यू वांट के यार आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करें. तो इन्वेस्टमेंट, सी आप देहरादून देखो, इट इज टुडे 10,000-12,000 rupee market, है ना. We've seen that trend of second homes recently. Kasauli, Nagaon, you know, Goa. So all that cycle is also over now in a way, because people in the last 2-3 years have invested, made money, or having their money get stuck in these places. बट सो देखो, रियल एस्टेट में तो आपको यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, यू हैव टू डू अ प्रॉब्ली अ मोर होलिस्टिक स्टडी. जमीन ही तो लेनी है. आप दिल्ली में लो, लखनऊ में लो, कन्याकुमारी में लो, आपको पैसे पे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्लीन लैंड मिलनी चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. जो इन्वेस्टर है उसके लिए लोग दुबई भी तो पैसे लगा रहे हैं. बिल्कुल लगा रहे हैं. दानूब का देखिए ना कि क्या एडवर्टाइजमेंट चल रही है, राइट. हर फ्लाइट में दानूब है. एंड आई डोंट नो हाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी देयर. शोभा भी है. शोभा भी दुबई में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है. सो एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, वन नीड्स टू बी एग्नोस्टिक ऑफ द ज्योग्राफी, आई फील. Because you can't be like married to Gurgaon or Noida or Bombay or Pune. You need to see where the opportunity lies, where the inherent appreciation in the market is available, and that is where the money should flow, right. आज tier 2 हमें लग रहा है मे बी कल को tier 1 वापस हो जाएगा या tier 3 आ जाएगा उसके बाद. तो वो तो आदमी one needs to be flexible when it comes to investment scenario. UP is very prime for that next phase. आप जेवर एयरपोर्ट ही देखो ना, part of UP है. Today it's the next growth story because
इतना बड़ा एयरपोर्ट लेके आ ही गए ना, दे आर ब्रिंगिंग इट. बट जेवर एयरपोर्ट का आपने नाम लिया, तो इज इट एक्चुअली गोना बी अ गेम चेंजर, या हाइप बहुत ज्यादा मचाई हुई है सोशल मीडिया नहीं पे? होगा, बिकॉज देयर फॉर टू रीजंस. वन इज इफ यू लुक एट दैट, सी जेवर इज नॉट गोइंग टू केटर टू गुड़गांव. गुड़गांव का अपना IGI है, ठीक बिल्कुल है. है. बट अगर आप किसी की भी बात करो जो फ्रेंड्स कॉलोनी रह रहा है, Yeah. जो फरीदाबाद रह रहा या है, नोएडा रह रहा है. नोएडा तो रह ही रहा है, या जो आगरा रह रहा है, वृंदावन रह रहा है, मथुरा रह रहा है, it is a huge population belt, Okay. right? It is going to cater to all that area. Nobody is going to come to IGI from there. क्योंकि आज दिल्ली के थ्रू ट्रैवल करना is a nightmare. You know, it takes you 2 hours. मतलब घर से आदमी बैठता है तो सोच के चलता है 1.5 घंटे से पहले नहीं पहुंचेंगे. पता चलता है 2 घंटे की फ्लाइट है और 2 घंटे तो घर से एयरपोर्ट पहुंचने पे लगता है. So therefore Jewar is going to be a really big game changer, I feel. And the amount of land the UP government has been able to acquire there, they have more than 5,000 acres of land. I was listening to one of the not articles, but one of the speeches of Yogi ji during a recent conference. The land accumulated by UP government in Jewar is 10 times that of IGI. 10 times. इतना बड़ा. So therefore, if you see the logistics that is coming around, the logistics hubs that is around, the industrial areas that they have earmarked for that location, I feel it is really going to be a big change, you know, in the next 5-7 years. तो वहाँ पे अभी जैसे गुड़गांव में हम देखते हैं कि रेरा अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है. हाँ. यूपी में भी रेरा कितना एक्टिव है? सुपर एक्टिव. अच्छा. I mean, I don't want to say anything else, but I mean the probability is one of the most